Welcome to the shortcuts and tricks in trade for the chapter statistics. Now, first thing which I want you to remember is the empirical formula. The empirical formula that is the relationship between mean, median, and mode, which can be asked. Two values can be given to you and third values can be asked to you. So how this is 3 median is equal to mode plus 2 mean. Now again, there are a lot of children who get confused. कोई लिख देता है 3 mode is equal to 2 mean plus median and so on. So there is a lot of confusion which children have. So that is why the easier way to remember this is that the difference between the difference between mean and mode is thrice the difference between mean and median. So that is how you will remember. Difference between mean and mode is thrice the difference between mean and the median. So this is an easier way to remember. Now the next problem where the mistake can happen is the time saving trick. When we talk about mean, सबसे पहले mean का मतलब क्या होता है? Average value of the given data is mean. So mean direct formula जो है वो आपने तब लगाना है जब xi और fi small है. Whereas this assume mean method will be used in many cases when the values of xi and fi are more. It is a less time taking method and इसमें calculation errors भी कम होते हैं. Less you can reduce your calculation errors. So I want, if nothing is asked in the question, you better use assume mean method because it is much more easier. Okay. Now, for mode, what is the meaning of mode? The value which occurs maximum number of times. तो कौन सी value सबसे ज़्यादा बार occur होती है? That is known as mode. So mode में भी you just have to remember L is the lower limit of the model class. Model class क्या कौन सी class होती है? Model class is a class which has highest frequency. क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज मॉडल क्लास. उसकी क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 बोला जाता है. उसकी प्रीसीडिंग पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F0 बोला जाता है और उसके अगली वाली क्लास को सक्सेसिव को F2 बोला जाता है. L stands for lower limit of the model class and H stands for the class size. So you have to remember the formula. Then median. Median means the center or the middle term for the given data, centermost term of the given data. Again इसमें मैंने आपको एक चेंज कराया था कि CF नॉट कराया था. तो you have to remember since CF नॉट है यानी कि प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाएगी जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई मीडियन क्लास? आई टोल्ड यू मीडियन क्लास इज अ क्लास whose cumulative frequency is just greater than n by 2. I told you the word significance of just. Now suppose करिए, let me explain you this just word का meaning again. Suppose करिए आपका डेटा गिवन है क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और आपने CF निकाला है एंड आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी है सपोज 100 है. तो यहाँ पे सपोज 8 है, ये सपोज 20 है, ये 42 है, ये 69 है, then we have 80, then we have 92 and the last one is 100. So first this and this should match always. Now just word का meaning क्या है? Cumulative frequency किस क्लास की n by 2 से just बड़ी है? n by 2 means 100 divided by 2. 100 divided by 2 means 50. तो 50 से just बड़ी जो है that is 69. 80 भी 50 से बड़ी है, 92 भी बड़ी है, 100 भी बड़ा है, लेकिन just बड़ा मतलब nearest बड़ा कौन सा है? तो 69. So this value will be considered as, this CI will be considered as your median class. Now what do you mean by median class? अगर कोई क्लास median class है, सपोज करिए हमारा डेटा शुरू होता है 0 to 10, फिर है 10 to 20, फिर है 20 to 30, फिर है 30 to 40. तो मतलब क्या हुआ? 30 to 40 होने का मतलब मीडियन क्लास अगर ये आई, इसका मतलब मेरा जो मीडियन का आंसर है ना बेटा, वो 30 और उस 40 के बीच में लाई करेगा. मीडियन विल लाई बिटवीन 30 to 40. सिमिलरली अगर किसी में मॉडल क्लास 30 to 40 आती है, दैट मीन्स मेरा मोड इसमें लाई करेगा, राइट. एंड सिमिलरली इसमें भी अज्यूम मीन के आसपास की ही वैल्यू. मीन कैसे पता चलता है? मीन
जीरो मैक्सिमम टू मिनिमम के बीच बीच में मीन होगा, यानी कि एवरेज वैल्यू जो है वो मीन होगी. सो दिस इज हाउ you have to check you can check your answer also whether they are correct or not. अगेन मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सेकेंड पॉइंट समझाया है कि ये फॉर्मूले सिर्फ तब लगेंगे जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूस है. अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो आपको कंटिन्यूस बनानी आनी चाहिए. अगेन एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे सपोज करिए ये क्वेश्चन है, इसमें चाहे ये मीन निकालना है, चाहे मीडियन निकालना है, चाहे मोड निकालना है. चेक करिए क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, तो कंटिन्यूस करने के लिए आप 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दोगे. सो दिस विल बी डन विद ऑल द क्लासेस, in all the classes. So you will get a continuous data. अब आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है वो आप इस क्लास इंटरवल में लगाओगे, इसमें नहीं लगाओगे. एक और चीज जो आपको याद रखनी है, चाहे मीन आए, चाहे मोड आए, चाहे मीडियन आए, जो उनका यूनिट है, यूनिट ऑफ मीन मीडियन मोड विल ऑलवेज बी दिस लेंथ. तो क्योंकि ये डेटा लेंथ का गिवन है, तो आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन में आ जाता है कि डेटा को इंटरप्रेट करो या इंटरप्रेट द गिवन डेटा. ओके, सो हाउ विल यू इंटरप्रेट? अगर आपका मीन आता है तो यू विल से दैट द मीन लेंथ ऑफ द प्लांट इज मीन, यानी कि एवरेज लेंथ ऑफ द प्लांट is dash millimeter. This is how you will interpret mean. अगर मोड आता है तो आप लिखोगे maximum number of plants has dash millimeter as length. मोड मतलब मैक्सिमम वैल्यू. फिर अगर मीडियन का इंटरप्रिटेशन पूछते हैं तो आप क्या लिखोगे? द सेंटर और द middle most plant has the length dash millimeter. This is how you will इंटरप्रेट द डेटा मीन, मोड एंड मीडियन. तो आपको याद रखना है मीन, मोड एंड मीडियन का यूनिट हमेशा क्लास इंटरवल से आता है. ओके, नाउ सपोज करिए आपको लेस देन डेटा गिवन है, तो आपको उसे कैसे कन्वर्ट करना है? एक ऐसे टैबुलर फॉर्म में जिसमें आप फॉर्मूला लगा सको, यानी कि क्लास इंटरवल में डेटा कैसे कन्वर्ट करना है, जिसमें कि क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों होनी चाहिए. नाउ लेस देन 140 मीन्स 5 का गैप है, आप देख सकते हो. तो पहला क्लास इंटरवल ये बन गया, अगला क्लास इंटरवल 140 to 145 बन गया, फिर उसके अगला 145 से 150 बन गया, अगला 150 से 155 बन गया, एंड सो ऑन. नेक्स्ट क्लास इंटरवल 155 से 160 बन गया, and the last class interval is 160 to 165. So this is how you will make the class interval. अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो लेस दैन 140 में 4 है, तो यहाँ तो 4 ही रहेगा. जब आप लेस देन 145 की बात करोगे जो कि 11 है बेटा, तो लेस देन 145 में इफ यू रिमेंबर 140 भी इंक्लूडेड है ना. जो नंबर 145 से छोटा होगा वो 140 से ऑटोमेटिकली छोटा होगा. तो इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? 11 माइनस 4 करके. अगले वाले की फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? 29 माइनस 11 करके. उसके अगले वाले की कैसे आएगी? 40 माइनस 29 करके. उसके अगले वाले की 46 माइनस 40 करके. एंड लास्ट वाले की 51 माइनस 46 करके. अगेन आप चेक कर सकते हो कि ये जो यहाँ पे जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है और ये वाला जो नंबर है ये आपका सेम आना चाहिए. यानी कि इसको जब आप ऐड करोगे, यहाँ पे जो भी आपके नंबर्स आएंगे, व्हेन यू विल ऐड ऑल दीज नंबर then you will get 51. This is how you will get your data. Now again
concept is very clear. n by 2, n by 2 means 51 by 2. 51 by 2 कितना होता है? 25.5, राइट चिल्ड्रन? 25.5 किस में लाई करेगा? आई होप क्लियर है. जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सॉरी नॉट दिस, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू है n by 2 के. So 29 is just greater than or equal to 25.5. So this one is the median class, 145 to 150. इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो 145 से 150 के बीच में ही लाई करना चाहिए जब मैं फॉर्मूला लगाऊं. ओके. सिमिलरली अगर मोर देन डेटा है तो अगेन आपको कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले क्लास इंटरवल, मोर देन 5 मीन्स 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 to 30, फिर 30 to 35, फिर मोर देन 35 is 35 to 40. Now, when we talk about frequency check, आप इसे नीचे से भी लिखना शुरू कर सकते हो. मोर देन 35 जो है वो 3 है, तो यहाँ पे तो 3 ही रहेगा. अगले वाले में क्या आ जाएगा? मोर देन 30 में 35 इंक्लूडेड था बेटा, तो ये आ जाएगा 7 minus 3 चिल्ड्रन, राइट. अगला वाला आ जाएगा 10 minus 7. उसका नेक्स्ट वाला आ जाएगा 14 minus 10. उसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा 16 minus 14. उसके नेक्स्ट वाला आ जाएगा 28 minus 16 एंड ये हो जाएगा 30 minus 28. सो अगेन आप जब CF निकालोगे, जैसे 30 minus 28 आपका 2 आ गया, 16 में से दिस गया, 8 में से इस 2, सो ये 12 आ गया. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस क्लास की 2, क्योंकि इनिशियल फर्स्ट क्लास है, अगली क्लास की 2 plus 12 यानी कि 14. अगेन ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है लास्ट क्लास की और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी फिर आपको मैच करना चाहिए. सो दिस इज 30. हियर ऑल्सो यू शुड गेट 30. देन ओनली you will come to know whether you have formed your data correctly or not. Okay, this is how you convert. Now again, this is a very simple concept. I just have taken this question to make you aware. Most, क्योंकि इसमें एक word लिखा है तो उसमें directly नहीं question में पूछा है. Given data is the distribution of the weekly pocket money received by students of a class. Calculate the pocket money that is received by most of the students. Maximum students को क्या मिला है? तो यानी कि इसमें क्या निकालना है? हमें मोड निकालना है. तो ऐसा भी क्वेश्चन हॉट्स की तरह भी आ सकता है जिसमें ये लिखा ही ना हो कि हमें क्या निकालना है. तो जो चीज सबसे ज्यादा बार अकर होती है, मैंने बताया था, वो मोड होता है. सपोज करिए यहाँ पे बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की जगह लिखा हो एवरेज स्टूडेंट्स. एवरेज स्टूडेंट को क्या पॉकेट मनी मिल रही है? तो एवरेज वर्ड किससे रिलेट करोगे आप? वो आप मीन से रिलेट करोगे. अगेन मैंने आपको मीन में बताया है 2 मेथड है, डायरेक्ट एंड एज्यूम्ड मीन. So you will use assume mean method since it is more scoring and less time consuming. Okay, so और अगर इसमें लिखा है which is the center most value, मतलब अगर टोटल हमारे कितने बच्चे हैं, सपोज करिए मेरे को टोटल अगर 100 बच्चे गिवन है तो 100 में से 50th बच्चे को, सेंटर मोस्ट बच्चे को कितनी पॉकेट मनी मिल रही है. तो जब भी मैं सेंटर वाले बच्चे की बात कर रही होंगी, दैट मीन्स मैं क्या बात कर रही हूँ? मीडियन की बात कर रही हूँ. आई हैव टू कैलकुलेट द मीडियन. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दे कैन यूज some other words also, so you should know what they are talking about in the paper. Next, missing frequency. बिल्कुल घबराना नहीं है, मीन गिवन है तो फॉर्मूला मीन का यूज हो जाएगा. अगेन आई हैव टोल्ड यू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI वाला फंडा यूज करना, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाती है और टाइम कम लगता है, राइट. अज्यूम मीन अगेन समझा चुकी हूँ. अज्यूम मीन क्या होता है? जैसे XI आप निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इसका 10 आएगा, इसका जो है वो 30 आएगा, गैप 20 का है, ठीक है. तो 20 ऐड करते जाइए, ये 50 आ गया, ये 70 आ गया,
और ये 90 आ गया। तो अज्यूम मीन सेंटर मोस्ट वैल्यू होती है, तो बाय चांस अगर दो सेंटर है तो आप दोनों में से कोई भी सेंटर ले सकते हो, सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। Similarly, in case of median also, how to calculate the median class I'm just referring to, इसमें पहली इक्वेशन तो इसी से बन जाएगी बेटा। कैसे? 2 प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस वाई प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 इज इक्वल टू 100, क्योंकि उसने बोला है कि जो ये टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 100 है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो इससे आ गई, दूसरी इक्वेशन मीडियन के फॉर्मूले से आ जाएगी। मीडियन हमें 525 गिवन है। अगेन क्योंकि मीडियन 525 गिवन है तो अंडरस्टूड है कि ये मीडियन क्लास होगी, क्योंकि 525 500 और 600 के बीच में लाई करता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए। ओके, इन दिस क्वेश्चन रेस्ट सेकंड जो इक्वेशन है वो आपके इस फॉर्मूले से आ जाएगी। अगेन यू रिमेंबर द मीडियन फॉर्मूला, इट इज L प्लस n by 2 minus CF naught upon F into H. This is the formula, right? This is the median class. Again, wherever it is said, use empirical formula. I have already told you in the first slide कि अगर suppose करिए किसी question में उन्होंने आपको मोड और मीन दोनों फाइंड करने के, उन्होंने देखो मीन हमें दे दिया है, उन्होंने हमें मोड फाइंड करने के लिए बोला है। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है? ऐसी क्लास जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हो गई मेरी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गई, तो ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F0, ये हो गया मेरा F2। तो आप फॉर्मूला लगा लोगे मोड का, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0। अगेन मैंने बोला था करंट वैल्यू को प्रेफरेंस देना है तो उसे पॉजिटिव रखना है। 2F1, क्योंकि यहाँ 2F1 है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होगी, F0 भी सब्ट्रैक्ट होगा, F2 भी सब्ट्रैक्ट होगा, इनटू क्लास साइज H। तो लोअर लिमिट L जो है वो 60 है, H आपको दिख ही रहा है 20 है, बाकी सब मैंने आपको दिखा दिया। तो मोड आप फाइंड करोगे, मोड आप फाइंड कर लोगे, मीन ऑलरेडी गिवन है। नाउ अगेन यू हैव टू यूज द एम्पेरिकल रिलेशन टू फाइंड द थर्ड वन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में समझाया था कि अगर बाय चांस आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप याद रखिएगा कि mean minus mode is thrice mean minus median. So you put the value, आपको जो भी वैल्यू गिवन है वो आप इसमें पुट कर लीजिए। मोड हमने निकाला है अभी अभी, मीन उन्होंने हमें दे दिया है, तो हम आप मीडियन निकाल सकते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड द थर्ड फॉर्मूला। That's all for statistics all the time, where you can save methods, where you can save time, and important points to remember. So in the next video, we will touch upon the next chapter. Thank you everyone. Stay tuned, and if you have any doubt, just write down in the